Okay, so chapter name is transaction management. Very easy theoretical part we have in this semester, and when we will do our backend development, that time we will actually use it in practical. What transaction does. तो समझो इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा स्लिपरी है. तो ट्रांजैक्शन क्या होता, it is called as a group of instructions. What is transaction? Group of instructions executed to perform one single task. Perform what? है तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बट वो मिलके एक टास्क पूरा कर रहे हैं. जैसे मेरी कंपनी है और मेरे पास 10 एम्प्लॉइज है. कितने एम्प्लॉइज है? एक मिनट कॉल ले लेता हूँ. स्टार्ट. So transaction by definition is called as what? Its first thing is group of instruction. Okay, so it is not one single instruction, it is a what? So means more than one. Group means, ठीक है, which are executed to perform a single logical unit of work. So with one transaction, even though there are multiple instructions, but that all instruction will perform one single logical unit of work. So if I am a company, let's say we are Inam Tech Technology Solutions LLP. Okay, we are a corporate, and now I have 10 employees. Okay, so whom I have to give salary? Whom I have to give salary? Okay, so on the first of every month, I will execute a command, dispatch salary. My payroll team will execute that. So my payroll team will go and will click on a button, dispatch salary. Okay, one click, what will happen? One click, how many queries will happen in the database? So this is my company account and this is my employees database. Okay, so here this is my two tables. This is company details table, in which I will have my LLP registration number. Every company has a unique registration number, company name, blah blah blah, and how much balance is there in the company fund. Okay, so let's say now if in the company fund balance is 10 lakh rupees. Okay, let's say what is the balance in the company fund? 10,000,000. Okay, so this was on the 29th of February, and 1st of March you will get your salary on the 1st of every month. And these are my employee details table. Okay, so this is my employee details table. So I have all the record of employees, employee number, employee name, and what is the salary I am giving them, and the account number of each employee in which salary is to be deposited. Okay, so now if I have 101 Alice, salary 800, and account number 1010, this blah blah blah. And now if I have 102 Ben and salary 1200, okay, let's take 1000, 8000 and 12,000. Okay, and 101083, blah blah blah, like this. Let's say I have two employees. And now if I say dispatch salary, so how many SQL instructions will be executed in the background? One, two, yeah. Insert, delete, update. Something's happening. No, what is happening? What will happen? So I will, in the background, these two instructions will happen. Update
EMP details. Okay, set the balance. So in this table you also have balance. What is the balance in that employee account? So let's say balance in employee account is 100 and balance in this account is 200. Let's okay. So what will happen? Set update EMP details. Set what? Balance equals to balance plus salary. Correct? Where E number equals to what? 101. So what will be the balance of 101 now? 8,100. And the same query will also be executed for employee number 2. So how much has been deducted? How much has been inserted now? How many SQL statements have been executed? 2. And will there not be a third also? Will not there be a third also? Which is that third? Abdullah bhai. So these two instructions will be executed for the employees. So update EMP details, set the balance equal to balance plus sal. तो 100 प्लस 8000 कितना हो गया? 8100 किसके लिए? एम्प्लॉय नंबर 101 और इसका कितना हो जाएगा? ओके अभी 29 तारीख को दोनों एम्प्लॉय और कंपनी का मिला के टोटल बैलेंस कितना है? कंपनी के अकाउंट में प्लस एम्प्लॉय के अकाउंट में टोटल कितना है? प्लस हाँ टोटल कितना है? दोनों मिला के 10,03,000 वेरी गुड. कितना है? 10,03,000 रुपए. सॉरी माय बैड. 10,03,000 रुपए. ठीक है. तो अभी अपने पास एम्प्लॉइज का ही पैसा ले लेते और सेट का ही पैसा ले लेते तो कितना पैसा जमा होता? 10,03,000 रुपए टोटल है ना. ठीक है वेरी गुड. अब अपन ने सैलरी डिस्पैच कर दी. क्या कर दी? तो 101 में कितने बढ़ गए? 8,000. 102 में कितने बढ़ गए? 12,000. तो ये कमांड और वो कितने टोटल? तो मेरी मंथली खर्चा कितना सैलरी के ऊपर? इनमटेक मंथली सैलरी पे कितना खर्चा कर रही है? 20,000. तो उतना इसमें से काटेंगे ना. तो कितना होगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? अपडेट क्या? कंपनी डिटेल्स. अपडेट कंपनी डिटेल्स और बोलो क्या? सेट बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस 20,000. सही है. तो ये 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे और ये 3 इंस्ट्रक्शन मिलकर क्या कर रहे हैं? एक मार्च की सैलरी का काम कर रहे हैं. तो अगर मेरे पास अभी 100 एम्प्लॉय होते, कितने होते? 100 एम्प्लॉय और मेरा एचआर जाके क्लिक करता डिस्पैच सैलरी पे तो क्या होता? 101 होते कमांड. क्या होते हैं? 100 लोगों को सैलरी मिलती प्लस 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 और उतना टोटल मेरे से कट जाता. तो मैंने एग्जांपल से के 2 एम्प्लॉय ले लिया. तो एक सैलरी का टास्क करने के लिए to do one transaction I have to execute these 3 commands in one after the other. Yes or no? नहीं समझ रही बात. समझ आ रहा है कि नहीं? If these commands get executed successfully, जैसे आपने गूगल पे से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए 100 रुपये तो वो 100 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे मेरे अकाउंट में आएंगे. तो आपके अकाउंट से होंगे डेबिट, मेरे अकाउंट में होंगे. दिस विल फॉर्म वन ट्रांजैक्शन ना. तो आफ्टर द ट्रांजैक्शन व्हाट शुड बी द डेटा इन द टेबल? ये बैलेंस क्या हो जाएगा? ये बैलेंस क्या हो जाएगा बोलो? 8,100. हाँ तो मैं इसको बाहर क्या लिखता हूँ. ठीक है. तो ये बैलेंस सैलरी आने के बाद हो गया 8,100 और ये बैलेंस कितना हो गया? 200. अब बोलो और यहाँ कितना हो गया? 9,80,000 हो जाएगा. क्या हो जाएंगे? 9,80,000. ठीक है ना. तो अभी जो है सैलरी अपन ने ट्रांसफर कर दी है. अब टोटल अमाउंट कितना है कंपनी के फंड में और एम्प्लॉय के अकाउंट में? कितना है?
कितना होगा? पहले 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 अपन ने ये फिगर निकाला था ना, ये फिगर, वो फिगर क्या था? वो फिगर क्या था? ये किसका समेशन था? ये समेशन था कंपनी के अकाउंट में कितना था? 10 लाख। और एम्प्लॉय वन का कितना था? 100 रुपये। और एम्प्लॉय टू कितना था? तो टोटल कितना हो गया? ये था बिफोर ट्रांजैक्शन, बिफोर द ट्रांजैक्शन। अब आफ्टर ट्रांजैक्शन कंपनी में कितना है? और एम्प्लॉय वन का कितना है? और टू का कितना है? तो टोटल कितना हो गया? हाँ, उतना ही होगा। तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट है। क्या बोलते हैं? डेटाबेस है कंसिस्टेंट स्टेट, and it has to be before the transaction and after the transaction. Database has to be in consistent state. तो अभी भी क्या है? 10 लाख। समझ में आया तुम लोग को कंसिस्टेंसी क्या होती? तो अगर ट्रांजैक्शन के पहले डेटाबेस कंसिस्टेंट था तो ट्रांजैक्शन के बाद भी डेटाबेस कंसिस्टेंट ही होना चाहिए। कल को ऐसा हो कि बेन को सैलरी नहीं मिली, बेन को सैलरी नहीं मिली और अपन बोले हमारे यहाँ से तो कट गई, हमारे यहाँ से तो हमको दिखा रहा है 9,20,000 रुपए, यानी हमारी तो हमको क्या दिखा रहा है सैलरी, कंपनी में क्या दिख रहा है बैलेंस 980, मतलब हमारे दोनों 8 भी कट गए और 12 भी कट गए। और बेन आके बोले सर मेरे को सैलरी नहीं मिली अभी तक। तो कभी कभी क्या होता कि आपके अकाउंट की केवाईसी नहीं होती, नो योर कस्टमर, क्या होता कि उसने आधार कार्ड या पैन कार्ड सबमिट नहीं किया होगा, आधार पैन लिंक नहीं किया होगा उसने, उसका डेट एक्सपायर हो गया, तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई वो अकाउंट को फ्रीज कर देती। क्या कर देती? फ्रीज। अब यहाँ से पैसे कट गए और इसका अकाउंट फ्रीज था तो वहां गए नहीं, तो उसके बैलेंस कितना है? उसको क्या दिखा रहा है? 200 दिखा रहा है। तो अब टोटल कितना था? कंपनी के अकाउंट में कट गए ना, तो कंपनी का कितना है? 980 है। और एलिस का कितना है? 980 कंपनी के पास है। और एलिस के पास कितना है? 8,100, उसको सैलरी आ गई ना बराबर। और उसके पास कितने हैं? उसको नहीं आया ना, तो कुछ भी नहीं आया, तो सिर्फ कितने उसके पास? अब बोलो टोटल कितना है? 9,88,300। तो अभी गोल हो गया ना। तो ये डेटा इनकंसिस्टेंट, डेटा क्या है? डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट। तो ट्रांजैक्शन के पहले भी डेटाबेस कंसिस्टेंट था तो ट्रांजैक्शन के बाद भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में नहीं आ रही? समझ में तुम लोगों को? ओके। अब अगर क्या होता है कि अपना ये जो अपन ने करे तो कभी कभी अपने डेटाबेस में कुछ फेलियर आ गया। क्या आ गया? कुछ फेलियर आ गया। तो अपन ने क्या करे? सबकी सैलरी वापस रिवोक कर, क्या कर दिया कि आधे घंटे बाद वापस स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो अगर मेरे पास 100 एम्प्लॉई है, 50 लोगों की सैलरी इंसर्ट हो गई, इतने में सिस्टम क्रैश हो गया। सिस्टम क्या हो गया? क्रैश हो गया। तो बाकी 50 को मिली क्या? नहीं मिली। तो क्या करेंगे अपन अभी? जो 50 की दी हुई है वो भी क्या करेंगे? वापस रिवोक कर लेंगे। तो आधे घंटे बाद सिस्टम को वापस रीस्टार्ट करेंगे ताकि वापस स्टार्ट हो जाए। नहीं सब, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि क्रैश कहाँ हुआ था, 33 वाले एम्प्लॉय पे हुआ था कि 44 वाले एम्प्लॉय पे हुआ था कि 73 वाले एम्प्लॉय पे हुआ था। तो मुझे रियल स्टार्ट कैसे करना मुझे मालूम नहीं। मैं क्या करूंगा? जितनी गई है वापस लिया होगा। इसका एग्जांपल सिंपल कैसा है कि अगर एक बंदा है ए, ठीक है, उसके अकाउंट में है 100 रुपये। कितना अकाउंट में है? 100 रुपये। और एक अकाउंट बंदा है बी, उसका अकाउंट में है 50 रुपये। क्या कितने हैं? तो ए में कितने हैं? 100, बी में कितने हैं? 50। अब बी बोलता है ए को मेरे को 50 रुपये ट्रांसफर कर। क्या कर? 50 रुपये ट्रांसफर कर। बी को चाहिए तो ए विल सेंड। ए कौन है? सेंडर। और बी कौन है? तो उसने तुरंत उसको फोन पे कर दिया और उसको आ गया कंफर्मेशन। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा? तो टोटल मनी इन द बैंक कितना है दोनों के मिला के? टोटल मनी कितना है दोनों का मिला के? बिफोर ट्रांजैक्शन कितना है? 150। ये स्टेट है 11 बजे का, ठीक है। अब 11:30 बजे उसने ट्रांसफर किया। ये जो ये हुआ ना ट्रांजैक्शन, कितने बजे हुआ? 11:30 बजे उसने ट्रांसफर किया। कितने? 50 रुपीज ट्रांसफर किया। कितने ट्रांसफर किया उसने? 50 रुपये उसने
ट्रांसफर किया। तो अभी बोलो 12 बजे क्या होगा स्टेट डेटाबेस का, क्या होगा? इसके 50 और इसके 100। टोटल मनी इन द बैंक, इस डेटाबेस कंसिस्टेंट? यस। अगर ऐसे होता कि इसके 50 कट जाते पर इसका केवाईसी हुआ नहीं है, या इसका कभी बैंक के सर्वर डाउन रहते, कुछ लफड़े रहते, उससे पैसे आए नहीं, तो अभी इसमें कितने है? 50। तो ऐसे व्हाट हैपेंस इन सच केसेस इन गूगल पे, फोन पे? कम बैक। तो वो तो बोलते हैं, वो आज तुरंत आ जाता, कभी कभी 15 मिनट में आ जाता। तो फिर क्या आएगा वापस? वो वापस क्या होगा? वापस वो क्या हो जाएगा? एक क्या अकाउंट में आ जाएगा ना। तो आइदर द चेंजेस हैव अकर्ड इन अ कंसिस्टेंट मैनर और नो चेंजेस एट ऑल। आइदर द चेंजेस हैव अकर्ड इन अ कंसिस्टेंट मैनर कि भाई 100 50 टोटल 150, अब 50 100 टोटल 150। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके तो 50 कट गए, वहां जमा नहीं हुए। तो इफ द चेंजेस अकर इट शुड बी इन कंसिस्टेंट, एल्स नो चेंज एट ऑल। वापस वो पुराने स्टेट पे डेटा उसको लेकर आ जाएगा, उसको रिफंड कर देगा उसको। इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं? तो 4 प्रॉपर्टीज है ट्रांजैक्शन की, एसिड बोलते हो। क्या बोलते हैं? एसिड प्रॉपर्टीज। बहुत काम की है, थियोरी तुम लोग अभी सीख लो, प्रैक्टिकल तुम करेंगे फाइनल ईयर में या एमसीए में करेंगे। एमसीए में तुम उसका पैटर्न करेंगे, अभी से सीख लो। ACID ये क्या है? ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज। The same question can come in 2 different ways in the exam, right? Shorted on transaction properties or shorted on acids. So A for atomicity. So what does atomicity indicate? If that after the completion of the transaction, the database should change in a or no changes at all. अमिताभ का डायलॉग है, मुझे हो तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। अगर चेंजेस हो तो कंसिस्टेंट मैनर में हो, वरना चेंजेस ना हो। ये किसकी है? एटॉमिसिटी। कंसिस्टेंसी क्या है? अगर मेरे ट्रांजैक्शन के पहले डेटाबेस कंसिस्टेंट था, तो मेरे ट्रांजैक्शन कंप्लीशन के बाद भी डेटाबेस कंसिस्टेंट होना चाहिए। डेटाबेस में वायरस नहीं आ जाना चाहिए कि सर 11 बजे सब ठीक था, जैसे मैंने आपको ट्रांसफर किया 50 रुपए, मेरा अकाउंट ही खाली हो गया, किसी ने हैक कर लिया मेरा अकाउंट। वो पता नहीं जीपे को किसी ने हैक कर लिया, और उस दिन जितने लोगों ने जीपे में ट्रांजेक्शन किया सबका अकाउंट हैक हो गया। तो ये हैकिंग कब हुई? जब ट्रांजैक्शन के बाद ना। अगर मैं वो ट्रांजैक्शन नहीं करता तो नहीं होती। तो अगर ट्रांजैक्शन के पहले डेटाबेस सही सलामत था, तो ट्रांजैक्शन के बाद भी डेटाबेस सही सलामत होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। सो इफ आई गिव यू माय बाइक and you go somewhere, and when you come back I see the side view mirror is broken, so who will I blame? The one who took it ना। I will tell him कि भाई तू लेके जा रहा है तो मेरी बाइक सही सलामत है, सब देख ले बराबर है। अब तू जब लेके आएगा तो मैं इसी तरीके से लेके आना। अब तूने लेके आया, अरे नहीं सर पहले से टूटा हुआ था, तो will I buy that? I will not buy that argument ना, because मैंने लेते वक्त तेको दिखा के भेजा था। तो बात समझ में नहीं आ रही। तो अगर मैं तेरे को बाइक जब दे रहा तो बाइक क्या है? कंसिस्टेंट है। तो जब बाइक लाके देगा तो कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी है, इफ एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन द डेटाबेस वाज ऑल गुड, देन ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन आल्सो डेटाबेस शुड बी ऑल गुड। ये क्या है? कंसिस्टेंसी। तीसरा क्या है? आइसोलेशन। तीसरा क्या है? व्हाट इज आइसोलेशन मीनिंग? कोरोना में बहुत था ना, कोरोना में आइसोलेट कर दिया उसको, नहीं यार? आइसोलेट, क्वारंटाइन। आइसोलेट मतलब क्या है? अलग अलग थलग, कुछ मालूम नहीं कि वो क्या है, आइसोलेट कर दिया ना उसको। जैसे कि व्हाट इज आइलैंड? मेनलैंड है ना बड़ा सारा, अलग थलग एक छोटा सा लैंड है समंदर के अंदर, वो क्या है? तो इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मेनलैंड, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। ओके, अब शाहरुख है, सलमान है, आमिर है,
ये कौन सी मूवीज पे काम कर रहे हैं मालूम तुम लोगों को? थोड़ा बहुत मालूम रहेगा, चलो वो ऐसा न्यूज में देख लिया था कि अभी इसकी शूटिंग कर रहा हूँ सर। वो तीनों कब क्या काम कर रहे थे कब मालूम पड़ेगा? ऑन द रिलीज ऑफ द मूवी, ऑन द। तो 3 चल रहे ट्रांजैक्शन, T1, T2 और T3। T1 क्या कर रहा है, T2 T3 को मालूम नहीं है। T2 क्या कर रहा है, T1 T3 को मालूम नहीं है। और T3 क्या कर रहा है, कब तक, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, जब तक क्या नहीं होता कंप्लीट। तो वॉट एवर चेंजेस आर मेड बाय द ट्रांजैक्शन, दे आर हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, दे आर हिडन फ्रॉम द until the transaction completes, मतलब commits। complete means commit। तो क्या है, what is isolation? Changes made by the transaction are hidden from the outside world till when? तो कौन क्या मूवी पे काम कर रहा है कोई मालूम नहीं है, कब तक, जब मूवी रिलीज होगी तब मालूम पड़ेगा। ओके ये फरवरी में यहाँ था कश्मीर में शूटिंग कर रहा था, अभी नहीं, अभी क्या मालूम नहीं है, वो कब मालूम पड़ जाएगा, रिलीज। तो changes made by a transaction is hidden from the outside world until the transaction is completed। when it is completed then you will come to know किसने क्या changes किया, जब तक कुछ मालूम नहीं कि वो क्या चेंज कर रहा। कोई शक, कोई शक। और D क्या है, ड्यूरेबल। D क्या है, ड्यूरेबल है। अगर ये बेंच इफ आई वुड हैव मेड ऑफ थर्मोकॉल देन कितने दिन चलता था वो बेंच? हाँ, 1-2 दिन 1 घंटा, क्योंकि वो क्या होता था, फ्रेजाइल, क्या बोलते हैं, देखा हैंडल विद केयर लिखा था बॉक्स के ऊपर, और एक ग्लास का फोटो रहता, मतलब ये चीज नाजुक है, जल्दी टूट सकती। तो मेरा जो ट्रांजैक्शन है, अभी मैंने सैलरी डाल दिया, सैलरी आ जाती शाम में मगरिब के टाइम पे, तो कितनी देर तक रहती सैलरी वो अकाउंट के अंदर? अगर कोई बंदा 10 साल तक सैलरी नहीं निकाले तो वो जो चेंजेस किया है ट्रांजैक्शन वो लॉन्ग लास्टिंग टिकाऊ रहता, जब तक तुम आगे का कुछ नहीं करते। ऐसा ना हो कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन रन हुआ और जो चेंजेस हुए थे वापस रिवर्ट हो गए तुरंत, तो वो क्या है, कमजोर ट्रांजैक्शन। मजबूत ट्रांजैक्शन क्या होता, जो उसने चेंजेस कर दिए वो लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो क्या है एसिड प्रॉपर्टीज बोलो, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। now let's take what, states of transaction, states of transaction। so I will draw 5 circles and transaction will be either of these states at any given point of time। कोई भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो कोई ना कोई एक स्टेट में अवश्य होगा, ठीक है। तो ये ऐसा बनाने का, और लेफ्ट टू राइट फिर एरो हेड बनाने का। एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम के अंदर एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, दिशा दिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना समझ में नहीं आता कि कहाँ से कहाँ जा रहा, ठीक है। तो ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा, और फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से कैसा, ऐसे। ओके, सो जो पहला स्टेट है वो है ट्रांजैक्शन एक्टिव हो गया। क्या हो गया, एक्टिव बोले तो जैसे ही मैंने पेस्ट कमांड दिया पेन ड्राइव के अंदर, तो ये मेरी लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप है, ठीक है। इस लैपटॉप के अंदर अपन ने एक लगा दिए पेन ड्राइव, रेड कलर वाली पेन ड्राइव है, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव लगा दिया अपन ने, ठीक है। और पेन ड्राइव लगाने के बाद में मैंने राइट क्लिक किया और पेस्ट किया। क्या किया, पेस्ट किया, तो एक प्रोग्रेस बार चालू हो जाता, रहा क्या ना, वो फिर कलर कलर होते थे ना, वो समझो वो चालू हो गया, तो वो 1%, 2%, अगर जैसा स्पीड स्लो है फास्ट है लैपटॉप का उसके हिसाब से आता ना, वो 1%, 2% से बढ़ गया, तभी ये मेरा चालू हो गया ना, कमांड चालू हो गया। तभी वो बोलता है कि 15 मिनट लगेंगे, बोले चल मुझे नमाज पढ़ के आते जब तक, फिर मेरा हालांकि वो तब तक। तो ये किस स्टेट में था ट्रांजैक्शन, एक्टिव हो गया, ओके, एक्टिव हो गया। आधी मूवी कॉपी हो गई, क्या हो गई, आधी मूवी क्या हो गई, कॉपी हो गई, या लेट्स से 99% कॉपी भी हो गई, आधी से ज्यादा हो गई, कितनी
95% मूवी कॉपी हो गई, इतना परसेंट आ गया, और उतने में फिर मेरे लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो गई या इसका पेन ड्राइव में मेमोरी फुल हो गई, तो क्या हो गया इधर, क्या आया, अपन अब तक आधे पे ना, तो ये क्या है, नहीं पार्शली कमिट, क्या हो गया, आधा सेव हो गया ना, पूरा थोड़ी सेव हो गया, कितना सेव हो गया था, पार्शल ना, जितना भी, और फिर आ गया एरर, क्या आ गया, तो अभी क्या होगा, द ट्रांजैक्शन विल बी व्हाट, फेल, ट्रांजैक्शन क्या हो गया, फेल हो गया, और ये 95% कुछ काम की नहीं है अभी, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वापस स्टार्ट से आने का, तो इट विल बी रोल्ड बैक, व्हाट विल बी, तो इसको बोलते हैं अबॉर्टेड, क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होगा, तो आपका जो भी है वो 90% जो है ना, जो कॉपी किया वो भी पूरा निकाल लेंगे वापस, तो फिर आपका खत्म तो हुआ, पर क्या हुआ, फोर्सफुल एग्जिट, क्या हो गया, फोर्सफुल एग्जिट, एक है ग्रेसफुल एग्जिट, ये 99% भी हो गया और पूरा हो गया 100%, और फिर मैसेज आता डाउनलोड कंप्लीटेड, तो पार्शली कमिट के बाद जब पूरा हो जाए कंप्लीट तो क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कमिटेड, क्या बोलते हैं, तो दोनों वे में यू आर कंप्लीटिंग, बट यू शुड नो, समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, तुमने पहले क्या पढ़े, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर क्या करे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, तो दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, दो टाइप के स्टूडेंट्स भी होते हैं, वैसे ही ट्रांजैक्शन होते हैं, तो दो टाइप के, ओके, फिर ओके, व्हाट इज 1 MB, कौन बोलेगा, 1 MB हाउ मेनी KB, 1024, how much, 1024 KB is 1 MB, right, then how much, what is 1 GB then, 1024 MB is, then what is 1 TB then, 1024 GB is 1 TB, उसके बाद क्या है, टेराबाइट के बाद क्या है, पेटाबाइट, पेटाबाइट क्या, 1 पेटाबाइट इज 1024 TB, फिर आफ्टर पेटाबाइट क्या है, जेटाबाइट, हाँ, 1 zettabyte is how much, 1000, और ये जेटाबाइट में स्पीड रहती चिट्टी की, बोलता माय नेम इज चिट्टी, स्पीड फलाने जेटाबाइट, तो जेटाबाइट्स में आता हूँ, अपने लैपटॉप की स्पीड किस में रहती, सर अपना मेगा हर्ट्स में रहती, 3.5 गीगाहर्ट्ज तो स्टोरेज रहता, गीगाहर्ट्ज में स्टोरेज था, स्टोरेज, मेमोरी जो रहती है ना, मेमोरी जो रहती है वो इसमें रहती है, हाँ, मेमोरी जो रहती है वो इसमें रहती है, देखो ये हर्ट्स में रहती है, किसमें रहती है, दिख रहा है, गीगा हर्ट्स, तो 1.9 इस लैपटॉप का है प्रोसेसर की स्पीड, उसका जो CPU उसकी स्पीड क्या है, गीगा हर्ट्स से भी आगे कहाँ है वो, हाँ, जेटाबाइट पेटाबाइट कहाँ कहाँ निकल गया, ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ग्रुप ऑफ KB इज कॉल्ड MB and group of MB is called GB, ये समझ में आया, वैसे ही group of instruction is called what, transaction, है ना, what is transaction, so what is group of transaction called, it is called schedule, it is called as what, schedule, वो अमेरिकन schedule बोल रहा है, देखिए, हाँ, it is called as what, so what is the schedule, group of, what is the transaction, group of instruction,
So what is the schedule? So in one schedule I can have more than one transaction. तो शेड्यूल के दो टाइप है मेन, एक सीरियल और एक नॉन सीरियल. क्या नाम है? सीरियल और नॉन सीरियल. नॉन सीरियल का नाम कॉन्करेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? कॉन्करेंट. कितने टाइप के शेड्यूल है अपने पास? कौन से बोलो? सीरियल, नॉन सीरियल और कॉन्करेंट. तीन हो गए ना ये तो. सीरियल और सीरियल. नॉन सीरियल ही कॉन्करेंट. गंगाधर शक्तिमान. ठीक है. तो नॉन सीरियल ही कॉन्करेंट है. ठीक है. नॉन सीरियल ही कॉन्करेंट. तो कितने टाइप के शेड्यूल हो गए भाई अभी? दो टाइप के शेड्यूल. कौन से? सीरियल और नॉन सीरियल. व्हाट इज द शेड्यूल? So in one schedule can I have two transactions? Yes. ठीक है. ओके. अभी सीरियल क्या है? जैसे आप बाइक चला रहे और आपको कॉल आ जाता है घर से. तो कुछ कॉल ऐसे हैं जो अपने को पिकअप करना ही है. पेरेंट्स उसमें एक आ गए, आपकी वालदा का कॉल आ गया, you want to talk something important, so we can't keep on hold because I might drive for next half an hour. So she might be needing something important information from me. बेसिकली चाबी का रखी हुई है. अब मैं आधे घंटे के बाद कॉल बैक करूँ तब तक तो बहुत देर हो जाएगी. ये बात समझ में आ रही. तो ऐसे कॉल अपने इमीडिएट पासा करना पड़ता. और मेरे को तो ब्लूटूथ की आदत नहीं है. वायरलेस होता ना, वायरलेस, तो मेरे को उसकी आदत नहीं. तो क्या करता, कॉल करते करते ही, अम्मी देखो वो चटाई फोल्ड करे थे, या वो कवर्ड है उसमें देखो शेल्फ है, ऐसे करते थे. तो उसके अंदर वो बुक है और गाड़ी चलाते बेटा. क्या करता? पक करते साइड में ले लो. साइड में लेकर तसल्ली से पूरी बात कर लिया, समझा दिया, जो समझ में आ गई, और फिर फोन डिस्कनेक्ट करता, फिर जाता. तो व्हेन आई एम ड्राइविंग आई एम नॉट टॉकिंग, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग आई एम नॉट ड्राइविंग. एक बंदा है वो टीवी भी देख रहा है, दोस्त से बात भी कर रहा है, बातें करते तो हाँ अरे क्या हो गया, अरे वो गोल मार दिया उसे. तो क्या कर रहा है यार, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया और तू सीरियसली ले नहीं रहा है बात. सुन फिर मेरी बात तो सुन पहले. कोई मेरे को समझ रहा नहीं, तू भी इससे बातें कर रहा है. तो ठीक है, फिर बोला टीवी बंद कर. तो व्हेन आई एम टॉकिंग आई एम नॉट वाचिंग द मैच, एंड व्हेन आई एम वाचिंग द मैच, वर्ल्ड का फाइनल है और लास्ट का मैच है, सुपर ओवर चला गया. अब तो इसका फोन आया तो क्या करते हैं, साइलेंट रख दो 5 मिनट के लिए फोन. पेरेंट्स का अलग है, उनके लिए हम उठा लेंगे. तो हम घर पे ही है ना, फोन भी करेंगे पेरेंट्स अपने को घर पे है. तो बाकी वाले मेरे टाइम पास वाले फोन आने वाले हैं. तो अभी जब मैं टीवी देख रहा हूँ तो आई वॉच वेब सीरीज ऑन फ्लाइट मोड. कोई फोन नहीं आना चाहिए टाइम. ठीक है. तो व्हेन आई एम वॉचिंग आई एम नॉट टॉकिंग, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग आई एम नॉट वॉचिंग. तो ये काम करता है सीरियल. एक टाइम पे एक ही काम. जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, और जब मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रहा. तो मैं मेरे स्टूडेंट से उनको बोला MCA भी जॉब करो. तो बोले सर अभी पढ़ाई की उम्र है, और घर वाले भी लोग भी फ्लो के अंदर है, पढ़ लेंगे ये उम्र में, फिर वो जॉब को लगने के बाद टेक्स्ट बुक खोलो, वो मोमेंटम नहीं मिलता है. तो पढ़ाई फिर काम. तो ठीक है. सो ऐसे तो सीरियल क्या करता है? सीरियल आई हैव टू ट्रांजेक्शन. आई हैव हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस? T1 and T2. T1 and T2. तो T1 ट्रांजैक्शन है कि तू मुझे 50 रुपये ट्रांसफर कर, और T2 ट्रांसफर है जो कैशबैक मिलेगा मैं तुझे दे दूंगा. मैं कोई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ ऑफर में, तो वो मेरे को कैशबैक दे रहे. क्या दे रहे? तो तू मुझे 10,000 रुपये दे. 10,000 रुपये की मैं वो चीज़ खरीदता, क्योंकि कैश में ऑफर किसमें है? कैश में. तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है? A to B कितना? 10,000 रुपीज़ फ्रॉम A to B. अब वो जो भी कैशबैक आएगा 1,000 रुपये 1,200 रुपये, वो मैं तुझे वापस दूंगा. सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है? सेकंड ट्रांजेक्शन कितना है? समझो 1,200 रुपये कैशबैक आया. कितना आया? 1,200 किसको, कौन किसको देगा? तो 10,000 कौन किसको देगा? नहीं A to B देगा. दो लोग है ना, एलिस और बेन है भाई. एलिस है और बेन है. तो बेन ने क्या बोला एलिस को? बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है, तो मेरे पास तो कैश है नहीं ऑफर लेने के लिए, तो तू मुझे 10,000 रुपये उधार दे दे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं तो आई विल गिव यू दिस बैक. उधार दे रही ना, आई विल रिटर्न इट टू यू,
बट तेरा तेरा भला क्या हो जाएगा इसके अंदर कि मुझे जो भी कैशबैक मिलेगा वो मैं तुझे दे दूंगा, मुझे तो वो चीज़ से मतलब है। तो अगर मुझे अभी कैश मिल जाता तो मैं तुझे कैशबैक दे दूंगा, और 1200 कैशबैक का वो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। तो बैंक का और अच्छा है ना, 10,000 भी मिल जाएंगे, फ्रेंड है ना तो डिच तो करेगा नहीं, और पैसे मिल जाएंगे। तो व्हाट इज T1, व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन? एलिस ट्रांसफरिंग 10,000 rupees to Ben. And what is T2 transaction? What is T2 transaction? Ben transferring 1200 to Alice. तो ये दो ट्रांजेक्शन हो गए। तो सीरियल में क्या होता है, तो ये अपने ये दो, ठीक है, याद रखो ये दो ट्रांजेक्शन को। ये दो ट्रांजेक्शन कौन से बोलो भाई? बेन ने अपने फ्रेंड एलिस को बोला कि मुझे 10,000 रुपये ट्रांसफर कर, तो गूगल पे भी वो करेगी ट्रांसफर। तो लेट से अभी वो चीज़ आ रही है 12,000 रुपये, कितने की आ रही? 12,000। तो बेन के पास कितने हैं जेब में अभी? 2,000 है ना। ही शॉर्ट ऑफ 10,000। तो वो एलिस को बोलता, एलिस के पास 15,000 रुपये है। कितने हैं एलिस के पास? एलिस बोले तो अपना हाजिर। तो कितने हैं? 15,000 रुपये। टोटल मनी इन द बैंक दोनों का मिला के कितना पैसा है? 17,000। ठीक है, तो ये टोटल याद रखना, टोटल कितना है? 17,000 टोटल है दोनों का मिला के। ठीक है, फिर बेन ने बोला एलिस को कि मेरे को चाहिए 10,000 रुपये, और तेरा फायदा क्या करूंगा उसमें मैं? मुझे कैशबैक मिलने वाला है, मैं तुझे पूरा कैशबैक दूंगा, A to Z आई विल गिव टू यू। तो वाली अच्छा, वेरी वेल एंड गुड। तो कितने भेजा उसने इसको? 10 के कहाँ से कहाँ गए? 10 के गए यहाँ से यहाँ, है ना। तो ये अपना T1 है। क्या अपना ये ट्रांजैक्शन T1 है जो क्या कर रहा? तो अभी एलिस कितने हो गए? 5,000, और बेन कितना हो गया? 12,000। टोटल मनी इन द बैंक कंसिस्टेंट, सही है। तो अभी अगर बेन बोलता है, फिर वो तो बपारे थे उसके, कुछ डाला नहीं, उसके 10 ऑपोजिट। क्या उसने क्या कहा? उसने वॉट एवर यू हैड गिवन मी आई एम गिविंग यू बैक। तो वापस क्या करा उसने? 10 की वापस क्या करा उसने? वो पैसे आ गए, बड़ी बात है, 10 के आ गई, बड़ी बात है। तो अभी 10 के वापस क्या हो गया अभी? तो कितना हो गया अभी वापस? 2,000 इसका वापस इधर किधर? 15,000। टोटल मनी इन द बैंक, व्हाट इज ट्रांजैक्शन T1? एलिस टू बेन 10,000। व्हाट इज T2? बेन टू एलिस 10,000। या फिर बाद में एलिस को जरूरत पड़ी कि भाई 5,000 रुपये देना, कितना दे? 5,000। ठीक है भाई, मेरे पास पैसे है, तो ये 12,000, उसमें से 5,000 दे, कितना हो गया? कितने हो गए इसके पास? 7,000। इसका कितने हो गए? 10,000। तो ये क्या था ट्रांजेक्शन? कौन किसको दे रहा? कितने? 5। टोटल मनी इन द बैंक, ऑल गुड, डेटाबेस इज कंसिस्टेंट। तो कितने हो गए इसमें ट्रांजेक्शन? कितने हो गए? ये हो गया T2। ये क्या हो गया? T2। ठीक है, तो सीरियल में क्या होता? T1 पहले शुरू होता। सर मैंने पहले KG से पढ़ाई शुरू करी, फिर मास्टर्स पे जाके अपनी पढ़ाई ख़त्म करी। उस वक्त तक मैंने कोई जॉब नहीं किया, कोई IT कंपनी ज्वाइन नहीं करी। फिर जब मेरी मास्टर्स की पढ़ाई ख़त्म हो गई, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया, और फिर अब तक मैं जॉब कर रहा हूँ। आई विल रिटायर, आई विल कंप्लीट माई जॉब ऑल्सो। सो one transaction is running at any given point of time. So if I tell you, if I ask him 2017 में क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। 2019 में पढ़ाई, 2023 में पढ़ाई, 2025 में लेट से आज वो हो गया ग्रेजुएट, PG हो गया उसका 2024 में, तो क्या बोलेंगे उसको? और जॉब करे ज्वाइन वो 25 से, जॉब करे ज्वाइन वो, तो जैसे December 31 तक वो जॉब कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तो उसका रिजल्ट कब आया? December 31 of 2024। तो 1 जनवरी 25 से जॉब। इफ आई आस्क हिम व्हाट वर यू डूइंग इन 2026, तो क्या बोलेगा? जॉब। 2029 जॉब, 2019। तो कोई भी टाइम पे पूछो वो एक ही आंसर देगा अपने को, कोई भी टाइम पे देखो। तो ये टाइम पे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? T1। ये टाइम पे क्या चल रहा है? T1। ये टाइम पे क्या चल रहा है? T1। ठीक है, तो T2 कब चालू हुआ? जब T1 क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर क्या चालू हुआ? तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली one transaction is
executing. So when I am driving, I will not talk on the phone. When I am talking on the phone, I will not type. At any given point of time, I will do only one task. तो ये कैंडिडेट 100% सक्सेस है. क्या है इसकी गारंटी कि ये घर हिफाजत से पहुंच जाएगा. तो इसका जो कंसिस्टेंसी रेशियो है किसका, सीरियल का, क्या है वो 100% कंसिस्टेंट. क्यों भाई, किस खुशी में ये 100% कंसिस्टेंट है? क्योंकि ये एक टाइम पे एक काम कॉन्सेंट्रेशन से कर रहा. बात समझ में नहीं आ रही. नॉन सीरियल ऑन द अदर हैंड tries to do two things. So it T1 भी ले लिया उसने, तो T1 भी शुरू कर दिया. सर मैं 10वीं तक पढ़ाई करा, फिर मैंने FY BCA में जॉब भी ज्वाइन कर ली. तो ये मैंने T1 शुरू किया और ये ख़त्म भी नहीं हुआ था, मेरा पढ़ाई ख़त्म भी नहीं हुई थी. ख़त्म हुआ क्या, ये लाइन नहीं आई ना नीचे की. और मैंने काम भी शुरू कर दिया था. तो यहाँ जाके मेरा रिटायरमेंट हुआ और उसके टाइम फिर मैंने बीच में बैकलॉग करा के मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट कर दी थी बीच में काफी. तो अभी देखो ये जो ओवरलैपिंग पीरियड है, यहाँ पर दोनों ट्रांजैक्शन पैरेलल चल रहे हैं. याद है? तो ऐसा कुछ ज़माना गुजरा है मुझ पे जब मैं 2 कॉलेज भी संभाल रहा था और मैं काम पे भी जा रहा था. जब मेरे सारे बैकलॉग्स क्लियर हो गए फिर ओनली काम, और शुरू के दिनों में स्कूल में ओनली पढ़ाई. पर अभी ये जो ग्रीन पट्टी वाला एरिया है उधर क्या है, 2 ट्रांजैक्शन क्या चल रहे हैं, पैरेलल कंकरेंट चल रहे हैं. क्या चल रहे हैं? तो जब ऐसा होता है शेड्यूल, उसको बोलते हैं नॉन सीरियल. और इसकी 50-50 कंसिस्टेंसी है. क्या है, अगर कर भी सकता सक्सेसफुली या नहीं भी कर सकता, कोई गारंटी नहीं है. इस शेड्यूल की कंसिस्टेंसी की कोई गारंटी. तो जो लोग फोन में बात कर रहे हैं वो ठोकते क्या जाके हमेशा आगे जाके, जरूरी नहीं है. और पहुंच भी सकते हैं और सेफली नहीं भी पहुंच सकते. जो भी रहेंगे ठीक है. तो व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ शेड्यूल, हु विल टेल मी नाउ? यस अनस, 2 टाइप्स ऑफ शेड्यूल. What are the difference between them? At any given point of time, only one transaction is executing. Second transaction will start when the first one will complete. Third will start when the second will complete. You can have multiple group है ना? क्या बोला है? Group बोला है मैंने. तो in one schedule you can also have group of transaction. इससे पहले T1 शुरू हुआ, T1 खत्म हुआ, फिर T2 शुरू हुआ, फिर T2 खत्म हुआ, और फिर T3 शुरू हुआ, T3 खत्म हुआ. ऐसा भी चल जाता है. तो ये जो है कौन सा दिख रहा तुम्हारे को, ये शेड्यूल क्या दिख रहा है, सीरियल का नॉन सीरियल? हाँ, क्यों सीरियल दिख रहा है? हर टाइम पे एक है. और ये वाला कैसा दिख रहा है तुम्हारे को? तो इसको कंप्लीट हुआ इधर, ये कंप्लीट हुआ इधर. ये कौन सा शेड्यूल है, बोलो भाई. हाँ, जो रेड रेक्टेंगल में है वो कौन सा है, और जो ब्लू रेक्टेंगल में है वो कौन सा है, बोलो भाई. ब्लू वाला क्या है, नॉन, और जो रेड वाला है वो नॉन. से गारंटी है कंसिस्टेंसी की, उसकी 100% कंसिस्टेंसी. और जो नॉन सीरियल की कंसिस्टेंसी गारंटी नहीं है. नाउ हाउ कैन आई से कि ये नॉन सीरियल भी है और कंसिस्टेंट भी. I read on a T-shirt, be an inspiration, don't be a warning. When you walk in the society, parents should say, be like him. See how he is dedicated. So be a inspiration. Don't be a warning. You are having bad manners. You're talking to your parents loudly, rudely, and having bad manners. What the parent will say? Don't be like him. Don't be like him. So you have become a warning. So what you all want to become? So which is the transaction which is inspirational? Serial or non-serial? Serial. Why is serial inspirational?
because it is always consistent. So the non-serial mother, the kid of the non-serial mother will say, why don't you be like serial? Why don't you be like? He is always consistent. So if this kid listens to his mother and he becomes like serial, then means I will say, even though he is non-serial, but he is consistent. And if he doesn't listen to his mother, so he is non-serial and non-consistent. एक सीरियल ट्रांजैक्शन है और एक नॉन सीरियल ट्रांजैक्शन. मैं अगर एक नॉन सीरियल को लूं, क्या लूं, और उसको सीरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, क्या करूं, और मैं करने में कामयाब हो जाता हूं, तो वो नॉन सीरियल है बट कंसिस्टेंट है. और मैं एक नॉन सीरियल ट्रांजैक्शन को लूं, शेड्यूल को लूं, उसको कोशिश करूं कन्वर्ट करने की सीरियल में, मेरी इंतहाई कोशिश के बावजूद भी वो नहीं होता है कन्वर्ट, तो क्या बोलूंगा, ये नॉन सीरियल भी है और नॉन कंसिस्टेंट. बिकॉज नॉन कंसिस्टेंट का क्या है, 50-50 है ना. नहीं समझ में आ रहा, क्या समझ आ रहा है, ये थोड़ा सा स्लिपरी है, समझने की जरूरत है. क्या है, हाँ तो फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने आपको नेकी के रास्ते भी दिखा दिए और बदी के. अभी आपको चूज करना है, तो इसको चॉइस दिया है नॉन सीरियल को. ये तो 50% है तेरे अंदर, अच्छा ही भी 50% है और तेरे अंदर अब कौन सा पलड़ा झुकता है वो मेन है ना. तो अगर ये नॉन सीरियल होने के बावजूद मैंने कुछ रूल लगाए, क्या लगाए, कुछ रूल्स लगाए, उसको कन्वर्ट कर दिया सीरियल में, और मैं आई एम सक्सेसफुल इन कन्वर्टिंग इट, तो फिर वो नॉन सीरियल क्या है, कंसिस्टेंट है. नॉन सीरियल भी है और इसको बोलते हैं सीरियलाइजेबल. क्या बोलते हैं, अफोर्डेबल. ये चीज मेरे को बजट में है, तो ये चीज क्या है, मेरे लिए अफोर्डेबल है. तो अगर मैं एक नॉन सीरियल लूं और उसको कर दूं कन्वर्ट सीरियल में, तो नॉन सीरियल क्या है, सीरियलाइजेबल, मतलब इज कंसिस्टेंट. समझ में आ रहा, व्हाट इज सीरियलाइजेबल, it is a non serial but it can be converted to serial by applying some set of rules. So I will call that non serial as serializable, means वो consistent है. और अगर मैंने एक नॉन सीरियल को लिया, तो रूल अप्लाई किए पर वो नहीं बन रहा है सीरियल में, तो क्या बोलेंगे, वो नॉन सीरियलाइजेबल है. समझ में आ गया. वो जो रूल्स है वो है सीरियलाइजेबिलिटी, और रूल क्या है, सीरियलाइजेबिलिटी. और उसके दो टाइप है, व्यू और कॉन्फ्लिक्ट. क्या है, व्यू और कॉन्फ्लिक्ट. तो व्हाट इज सीरियलाइजेबिलिटी, उसको स्टार्ट करने का ऐसे हूं मैं, एवरी सीरियल शेड्यूल लीड्स टू अ कंसिस्टेंट डेटाबेस, guaranteed. Every non-serial schedule may lead to a consistent database, may not lead to a database consistency. Non-serial की कोई गारंटी नहीं. May be consistent, may not be consistent. If by applying certain set of rules, I am able to convert a non-serial to serial, then I will call that non-serial as serializable, and those set of rules are called as serializability, and they are of two types, view serializability and conflict serializability. अब बोलो, तुमको समझ में आया, हाँ भाई.